جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 منٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں پہلے آپ کو تھوڑے ٹائم میں پڑھاؤں گا. یہ بڑا آسان سا ٹاپک ہے اور اینڈ پر پھر میں آپ سے پچھلا جو ٹاپک ہے پاکستان کے طبعی خلافات جو مکمل کیا ہم نے پچھلے لیکچر میں وہ میں آپ سے سنوں گا. تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں, ذرا توجہ رکھیے بیٹے. یاد رکھ لیں یہ ایک لانگ کویسچن ہے. پاکستان کی آب و ہوا, اونچا بولیے کیا؟ پاکستان کی آب و ہوا. یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں میں بیٹے ہوا کس طرح کی چلتی ہے. کہیں علاقے بلند ہیں, کہیں میدان ہیں, کہیں صحرا ہیں بیٹا. تو مختلف علاقے ہم نے پیچھے پڑھے کہ کہیں پر سطح مرتفع ہے, کہیں پر پہاڑ ہیں اور کہیں پر میدان ہے, کہیں پر ساحل ہے, کہیں پر ریگستان ہے. اب بیٹے پاکستان کی زمین مختلف طریقوں کی ہے. بولیے اس میں کیا کیا موجود ہے؟ پہاڑ ہے, میدان ہے, ریگستان ہے, ساحل ہے, سطح مرتفع. اب بیٹے یہ 4-5 قسموں کی زمین پاکستان میں, 4-5 قسموں کے علاقے پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ بھائی مختلف علاقوں میں کیا مختلف علاقوں میں کس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں. کیا گرم ہوائیں چلتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, نارمل ٹیمپریچر والی چلتی ہیں, بھئی کیسی ہوائیں چلتی ہیں. تو اگر ہواؤں کے اعتبار سے پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے پورے پیس آف لینڈ کو, کیا بیٹے پورے پیس آف لینڈ پاکستان کی جو زمین ہے 796096 کلومیٹر, اگر بیٹے اس کو کیا کیا جائے ڈیوائیڈ کیا جائے تو کاکا پارٹی پاکستان کی زمین کے علاقے بنتے ہیں کتنے؟ 4. پہلا کیا لکھا ہوا بیٹے؟ خطہ, یہ پہلا ہے جس کو انگلش میں بیٹے آپ کے سامنے نام لکھا ہوا ہے, کیا کہا جاتا ہے جی؟ جی یہ پہلا جو پوائنٹ تھا, نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ. یہ لفظ تھا بلند آب و ہوا کا خطہ. اچھا یہاں پر میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ ہائی لینڈ ہونا چاہیے تھا, تو لکھا ہوا ہے بیٹے سب ٹراپیکل کانٹیننٹل ہائی لینڈ. اچھا ادھر دیکھو بیٹے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں, جیسے جیسے ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں نا ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے. بولو کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نیم ہاری بلند آب و ہوا والا خطہ, تو بلند بیٹے کون سا علاقہ ہوتا ہے؟ جہاں پر میدان ہو نہیں, جہاں پر پہاڑ ہوں گے وہ بلندی والا علاقہ ہوگا. تو ہم پڑھیں گے کہ پہاڑی علاقوں میں ہوائیں کیسی چلتی ہیں, پھر ہم کریں گے. بولیے ذرا دوسرا نام. اب سطح مرتفع, مجھے بتاؤ وہاں پر بیٹے بلند ہوتی ہے زمین یا بہت چھوٹی ہوتی ہے یا نارمل ہوتی ہے؟ بھائی کتنی ہوتی ہے بیٹے؟ کل میں نے بتایا تھا 300 سے 900. وہاں پر ہوائیں کیسی چلتی ہیں؟ پھر بیٹے اگلا تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نیم ہاری بری میدان. اب میدان میں میدانی علاقے, میدان آپ نے کتنے پڑھے ہیں بیٹا؟ کتنے پڑھے؟ دریا سندھ کا بلائی میدان, دریا سندھ کا شہری میدان, پھر آپ نے ساحلی میدان اور پھر آپ نے ریگستانی میدان. ان علاقوں میں ہوائیں کیسی چلتی ہیں؟ پھر بیٹے آخری کون سا ہے؟ ہاری ساحلی آبہوا, ساحلی علاقے میں کیسے ہو. تو یہ 4 ان کے نام بیٹے شارٹ کویسچن ہے. مگر اس سے پہلے آپ کی بک میں آب و ہوا کی تعریف لکھی ہوئی ہے, ڈیفینیشن آف کلائمیٹ. کلائمیٹ بڑی سادہ سی تعریف, اپنی بک پر آئے اور بک سے دیکھ کر میرے ساتھ بولیے کیا تعریف لکھی ہوئی ہے. کہتا ہے کسی ملک یا علاقے کی لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا مطالعہ آب و ہوا ہے. کہتا ہے کسی ملک یا علاقے کی سال ہا سال کی موسمی کیفیات. مثلا ہم نے جاننا ہو کہ لاہور کی آب و ہوا کیسی ہے, تو ہم بیٹے لاہور کو 11 سال سے لے کر کم از کم 11 سال میکسیمم 40 سال 40 ایئرس ہم سٹڈی کریں گے. 11 سال سے لے کر 40 سال تک ہم سٹڈی کریں گے کہ اس میں سال میں بارشیں کتنی دفعہ ہوتی ہیں,
साल में हवाएं कब कब चलती हैं, साल में धूप कितने दिन निकलती है, बारिशें कितने दिन होती हैं, तेज आंधियां कितने दिन आती हैं, ये सारा बेटे स्टडी करने के बाद साल साल जब स्टडी कर लेंगे तो हम एक पेज पर लिख लेंगे जी कि लाहौर में ये उसकी आबो हवा की कंडीशन है। तो कहते हैं साल साल स्टडी करने के बाद किसी इलाके या मुल्क के मौसमी मामलात को देखने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को बेटे क्या कहा जाता है, आबोहवा। फिर बेटे डेफिनेशन कोड की शॉर्ट क्वेश्चन, कोड का शॉर्ट क्वेश्चन बेटे बड़े ध्यान से ऊंचा बोलिए, क्या लिखा हुआ है, किसी मुल्क या इलाके के साल से लंबा अरसा से मुराद साल लंबा अरसा, और वो कितना मैंने आपको बताया, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, समझाने के लिए इजाफी और बुक्स में पढ़ा हुआ, तो ये 11 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 40 ईयर। बेटे जब आप इतना स्टडी करते हैं तो वो मुल्क की क्या निकल आती है, फिर एक दफा डेफिनेशन बोलिए, बुक में लिखा है किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का आबोहवा के एतबार से बेटे ये पाकिस्तान कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है, जरा बताइएगा। नंबर 1 नीम हरी बड़ी नंबर 2 अच्छा, मैं आपको एक ओवरव्यू पहले दे देता हूँ बेटे। बुलंद इलाका है ना, पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाके में बेटा सारा साल ठंडी हवाएं चलती हैं, क्या पहाड़ी साल ठंडी हवाएं, और बारिशें इस इलाके में ज्यादा होती हैं, क्या बेटे, और जब शिद्दत की सर्दी आ जाए तो बर्फ बारिश स्नोफॉलिंग होती है, ये लिखा हो। सतह मुर्तफा, ये सतह मुर्तफा पोठवार की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है सतह मुर्तफा बलूचिस्तान की। बोलो किस इलाके की, बलूचिस्तान की सतह मुर्तफा है ना, वो बेटे सारी मैदान है, बोलो क्या है, मैदान। और वहां पर जहाँ तो बुलंद एरिया है, जैसे आपने पढ़ा 600 to 900 मीटर बुलंदी है बेटे, वहां पर मैदान है, और उसमें जब गर्मी आती है तो बेटे गर्म हवाएं चलती हैं। आप इतना देर में रखें, इधर कैसी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, इधर कैसी चलती हैं, गर्म हवाएं। अब बेटे मैदानी आबोहवा, मैदान में सर्दियां भी आती हैं और गर्मियां भी, तो सर्दियां जब आती हैं तो ठंडी हवा, जब गर्मियां आती हैं तो गर्म हवा। आप जानते हैं ना भाई, आप कैसी सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म। अच्छा, ये आ गया साहिली इलाका। अब यहाँ इसको समझने की जरूरत है, साहिली इलाका। अब साहिली इलाका कौन सा होता है, जो किसके करीब हो, समंदर के। अब फॉर एग्जांपल बेटे ये है समंदर, मैं आपको बुक से भी पढ़ाऊंगा लेकिन अभी सिर्फ समझ ये, अब इसमें ये मछलियां भी हैं, चलो सांप भी बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये अब वो कहते हैं जी कि ये क्या है, ये है मेरा पुत्र समंदर। अब समंदर का जो किनारा होता है और उस समंदर के साथ वाला जो इलाका होता है ना बेटे, उस इलाके को साहिली इलाका कहा जाता है। अब यहाँ पर वो बेटे सारी उसकी रो, अब ये समंदर है, समंदर के करीब वाला इलाका ये साहिली इलाका है। पाकिस्तान में मुझे बताओ जरा कितने किलोमीटर है, 1050, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, 1050 किलोमीटर साहिली इलाका है। अब इस इलाके में ना बेटे 2 तरह की हवाएं चलती हैं, बोलो कितनी तरह की, 2 तरह की। एक को कहा जाता है नसीम बर्री, जिसे आप कहते हैं लैंड ब्रीज, और एक होती है बेटे नसीम बहरी, जिसे आप कहते हैं सी ब्रीज। बोलो क्या कहते हैं, सी ब्रीज। अच्छा सुनो, ये जो समंदर वाली साइड से हवाएं आती हैं इनको कहा जाता है सी ब्रीज, नसीम बहरी, और जो इधर बेटे मैदानी इलाके होते हैं उधर से जो हवाएं आती है उनको क्या कहते हैं, नसीम बर्री। ये बहरी, ये बर्री, लैंड ब्रीज। अब जो पानी के ऊपर से हवाएं आएंगी बेटे वो ठंडी होगी गर्म, ठंडी, और जो मैदानी इलाकों से आएंगी वो गर्म। तो ठंडी और गर्म हवाएं बेटे इस एरिया में आपस में आके मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया का टेम्परेचर हमेशा बेटे नॉर्मल रहता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 32। तो लिहाजा इस एरिया में ना हवाएं ठंडी ना हवाएं गर्म, बल्कि नॉर्मल चलती है। अब बेटे इसी बात को
एक एक करके जरा बुक से, इधर मैंने बताया ना ठंडी हवाएं चल, इसी को जरा बुक से भी देखें ताकि आप ये ना कहें कि सर ने हमें कह। ये पहले नंबर पर दूसरे ने बताए हैं बेटे 3 पहाड़ी सिलसिले, आपने पीछे भी पढ़े। कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले बेटा? मैं आपसे पिछला सुन भी रहा हूँ साथ साथ। शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाल मगरिबी पहाड़ी सिलसिले और मगरिबी पहाड़ी और सिलसिले। कुछ बलूचिस्तान की यहाँ उसने चौथे भी लिखे। कहते हैं ये पहाड़ी सिलसिले, इनमें देखिए मौसम सरमा ज्यादा देर होता है, सर्द हवाएं चलती है, बर्फबारी होती है, ठंडा रहता है गर्मियों में, मौसम बहार, इसमें बारिशें होती हैं। इनमें इलाके कौन कौन से हैं जी? हमालिया, मरी, हजारा, या सारा साल बारिशें होती रहती। मुझे बताओ ये कोई मुश्किल बात है? मैंने आपको समझा दिया, अब इसी बात को अप्लाई करवा रहा हूँ बुक से। इससे बेटे आसान तरीका कोई नहीं था आप लोगों के लिए। प्लीज 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 मेहनत कीजिए, पढ़िए बेटा, तैयारी कीजिए, आपका भला है, आपका भला है और सिर्फ आपका भला है। अगला पॉइंट बेटे सदा मुर्तवा, मैंने बताया बलूचिस्तान, कल भी आपने पढ़ा बलूचिस्तान की जमीन बेटे कैसी है? पहाड़ी और मैदानी बंजर है, वहाँ बारिशें ज्यादा होती है कम? इस इलाके में बारिशें कम हो, वो बेटे बड़ा ठंडा होता होगा, यही बात बेटे यहाँ कहता है जी। इसमें बलूचिस्तान का इलाका आता है, मई से सितंबर तक हवाएं चलती हैं। सिबी जैकबाबाद जहाँ बेटे टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, वो भी इलाका इसी में। यहाँ सिर्फ जनवरी और फरवरी में बारिश होती है, बाकी सारा साल बेटे कैसी हवाएं चलती हैं? गर्म हवाएं। इतनी सी बात। अगला बेटे नसीम आरी बली मैदान। अब मैदान बताओ कितने हैं बेटा? 2 मेन है, मेन 2 है। कौन कौन से? दरअसल का बलाई मैदान और अच्छा बलाई मैदान, उसमें सुबह पंजाब आता है। जेरी मैदान में कौन सा सुबह आता है? सुबह कल पड़ा हुआ है ना। अच्छा इस खित्ते में कोई बेटे बात, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में सर्द, बारिशें मानसून में होती हैं। फिर इसी तरह थल का जो इलाका है उसमें भी बेटे गर्म हवाएं, बारिशें कम। बलूचिस्तान के इलाके में भी बारिशें कम और मौसम भी गर्म रहता है। अगला बेटे आखिरी साहिली इलाका, वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम डिफरेंट होता है और यहाँ पर टेम्परेचर अंडरलाइन करें 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिर्फ मई और जून में गर्म हवाएं चलती हैं, बाकी सारा साल बेटे मौसम मुतदिल रहता है, नॉर्मल। कितने टेम्परेचर वाला? 32 डिग्री सेल्सियस। बताओ बेटे समझ आ गई बात? Yes. कोई इशू तो नहीं है इसमें? इसको अच्छे काकू की तरह याद करना, ठीक है? ओके।